ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Which श्लोक today? सॉरी, सेकंड से पढ़ना है, मतलब मैंने जो लिया उसके बाद से नहीं लिया। Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 1. Observing the armies. Text 2. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words. Purport: Dhritarashtra was blind from birth. Unfortunately, he was also bereft of spiritual vision. He knew very well that his sons were equally blind in the matter of religion, and he was sure that they could never reach an understanding with the Pandavas, who were all pious since birth. Still, he was doubtful about the influence of the place of pilgrimage, and Sanjay could understand his motive in asking about the situation on the battlefield. Sanjay wanted, therefore, to encourage the despondent king, and thus assured him that his sons were not going to make any sort of compromise under the influence of the holy place. Sanjay therefore informed the king that his son Duryodhana, after seeing the military force of the Pandavas, at once went to the commander-in-chief, Dronacharya, to inform him of the real position. Although Duryodhana is mentioned as the king, he still had to go to the commander on account of the seriousness of the situation. He was therefore quite fit to be a politician, but Duryodhana's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. तो अब ये महाभारत का पूरा जो युद्ध हुआ उसकी जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, उसकी चर्चा चल रही है. सो Pandu and Dhritarashtra and Vidur, they were all three brothers. Dhritarashtra was the eldest, but he was blind from birth. Therefore, he was unfit to act as a king. इसलिए पांडु को राजा बनाया था. But then Pandu died early, leaving behind पांडवास. तो लेकिन ये पांडवा थोड़े छोटे थे, इसलिए अभी राज्यभार नहीं संभाल पा रहे थे. इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ पांडु कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को रखा गया कि भाई और कोई नहीं, जब तक ये बड़े होते हैं तब तक आप संभालिए. पर धृतराष्ट्र धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं था. उसकी अपनी भौतिक इच्छाएं कि मैं राजा नहीं बन पाए, मेरे बच्चे तो कम से कम राजा बने. धर्म के अनुसार पांडु राजा बने, पांडु के पुत्र जो हैं वो राजा बनने चाहिए. अभी वो छोटे हैं इसलिए ठीक है. दुर्योधन भी छोटा है उस समय तो, लेकिन उसकी हमेशा इच्छा है कि नहीं, दुर्योधन ही राजा बनना है. तो इस तरह से उसने बहुत सारे दुर्योधन की प्लानिंग, दुर्योधन हमेशा उनको मारने के लिए ही प्रयास करता रहा पांडवों को, और धृतराष्ट्र हमेशा उसकी मदद करते रहे उनकी मारने के सब षड्यंत्रों में. तो अभी अंततः ये युद्ध की भूमि में सब आ गए हैं. तो अभी इस तरह से ये धर्म का युद्ध है, अधर्म को हटाने के लिए. ये कोई सामान्य झगड़ा नहीं है, ये धर्म के लिए हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है. सो अभी दुर्योधन जो है वो अभी देखा सामने, पांडव आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, तो दुर्योधन गए हैं. और द्रोणाचार्य उनके पहले सबसे जो स्टार्टिंग हुई लड़ाई की, उसमें कमांडर इन चीफ जो है वो द्रोणाचार्य है, सेनापति. तो उनके पास गए हैं क्योंकि उसको डर लग रहा है, अरे ये पांडव जो हैं जीत तो नहीं जाएंगे. हालांकि सेना की दृष्टि से नंबर ऑफ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे इधर दुर्योधन की तरफ, लेकिन वहाँ पर कृष्ण हैं और पांडव, तो इसलिए दुर्योधन इज ऑल्सो वरीड क्या होगा आउटकम.
फिर आगे दुर्योधन भी बोलता है, O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. तो अब कमांडर इन चीफ द्रोणाचार्य को बोलता है, देखिए सामने देखिए आर्मी को, जो द्रुपद के पुत्र ने बहुत अच्छे से अरेंज किया है। तो प्रॉपर्ट दुर्योधन, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana commander in chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice by which he received a benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drishtadyumna, was entrusted to him for military education. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drishtadyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for the military phalanx after having learned the art from Dronacharya. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also wanted that such leniency in the fight would lead to defeat. तो दुर्योधन डिप्लोमेट है ना, राजनीतिक, तो वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखिए सामने जो है वो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो सेनापति है। आपने पहले भी एक बार गलती की, अभी दोबारा गलती मत कीजिएगा। तो क्या गलती की आपने? तो द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों मित्र थे, लेकिन आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ द्रोणाचार्य ने उनका अपमान किया, तो उसकी वजह से द्रुपद ने बदला लेने के लिए एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया, यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य को मार सके। तो वो पुत्र था धृष्टद्युम्न। सो धृष्टद्युम्न वाज सपोज टू किल द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य उसी के हाथ से मरने वाले थे। द्रोणाचार्य न्यू दिस कि ये पुत्र जो है वो मुझे मारने के लिए उसने प्राप्त किया है। तो जब द्रुपद ने उस पुत्र को भेजा, जाओ द्रोणाचार्य से सीख के आओ युद्ध करने का। द्रोणाचार्य जानते थे, फिर भी उसको सिखाया। ये ब्राह्मण का गुण है। धर्म के लिए कितने निष्ठ होते थे। ये पर्सनैलिटी है, ये इंटीग्रिटी है कि यस आई एम ए ब्राह्मण, मेरा काम है, मेरे पास कोई आया सीखने के लिए, अगर वो योग्य है सीखने के लिए आई शुड टीच, भले वो मुझे मारे कोई बात नहीं। दैट वॉज द टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्टिंग इन दोज डेज। ऐसा नहीं कि सब इंद्रिय भोग के लिए नहीं, दे वर पीपल ऑफ कैरेक्टर। और उसको खूब मन से सिखाया, अच्छे से सिखाया। इसी वजह से द्रुपद ये पुत्र जो है धृष्टद्युम्न ने बहुत अच्छे से सब अरेंज किया है ना। ऐसे जो लड़ाई भी होती थी तो वो ऐसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके होती थी, पीठ के पीछे नहीं चलाएंगे, बिकॉज दे वर क्षत्रिय, जोश है, मारना है हमें, दे हैड दैट सेंस ऑफ धर्म। हमें धर्म का पालन करना, अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, इंद्रिय भोगी नहीं थे, बहुत हाई कैरेक्टर था, पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत हाई थी। आज हम बात करते हैं सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लिप्त है उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? कुत्ते बिल्ली जैसी होगी। कुत्ते बिल्ली क्या होते हैं? इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या करो, जहाँ सेक्स मिल गया, जहाँ खाना मिल गया, वहाँ कुछ और देखते नहीं है, माता है, डॉटर है, उनसे क्या पर्सनैलिटी की हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, कैरेक्टर क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के लिए चाहिए इंद्रिय संयमन, मन संयमन, धर्म, उच्च लक्ष्य, जीवन के उच्च कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य जिनके जीवन में, उससे हम हाई पर्सनैलिटी का क्या अपेक्षा कर सकते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में लिप्त हैं उनकी पर्सनैलिटी तो कुत्ते बिल्ली जैसी होगी। तो इसलिए आजकल के सारे तथाकथित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? सोफिस्टिकेटेड कैट्स एंड डॉग्स बनाने के प्रयास। दे आर नॉट रियली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है शास्त्रों को पढ़ करके, इनको पालन करके रियल पर्सनैलिटी बनती है ना। सो दिस यू कैन सी। तो अभी वो उनको इंगित करा, देखिए अभी सावधान रहिएगा, आपने ऑलरेडी गलती की, अभी दोबारा से अभी लीनियंट मत हो जाना आप। अभी पांडव हैं सामने, पांडव और फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ द्रोणाचार्य, तो अभी आपके सामने है, तो अभी लीनियंट मत करना, आप पूरे जोश से लड़ना आप, ऐसा उनको इनडायरेक्टली ही इज हिंटिंग। दिस इज डिप्लोमेटिक।
बिहेवियर। फिर आगे कहता है, here in this army are many heroic women equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yudhan, Virat and Drupad. Even though Drishtadumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya's very great power in the military art, there were many others who were causes of fear. They are mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory, because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. तो कह रहे हैं कि ठीक है, आप सोचो कि अरे ये मेरा शिष्य है, ठीक है धृष्टद्युम्न, लेकिन द्रोणाचार्य वॉज ए वेरी वेरी पावरफुल फाइटर, तो उसके सामने वो धृष्टद्युम्न की स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। लेकिन आप सचेत रहिए फिर भी, क्योंकि केवल धृष्टद्युम्न नहीं है, वहाँ पर भीम अर्जुन जैसे बहुत सारे, भीम अर्जुन वर स्पेशली वेरी 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 पावरफुल, लेकिन वो अकेले नहीं है, उन जैसे बहुत हैं उस आर्मी में, इसलिए यू बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना। तो सब कुछ के नाम दिए, युधान, विराट, द्रुपद, ये सब बड़े बड़े महारथी हैं। एक एक सैनिक जो है हजार हजार लोगों से युद्ध कर सकता है, ऐसे क्लासिफिकेशन होते थे, रथी, महारथी, है ना, कौन कितने सेना से अकेला युद्ध कर सकता है। तो हमारे जो इतिहास में जो शौर्य है वो था सामने आकर के युद्ध करना है, युद्ध का कौशल होता था। आजकल क्या है, पीछे पीछे बैठ के बटन दबाना, बस न्यूक्लियर का दबाने, अपने आप में कोई उनका वीरता दिखती नहीं है ना। टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है, व्यक्ति के अपने जो गुण हैं वो डेवलप नहीं होते। जैसे भी आपका कैलकुलेटर आ गया, तो उससे जो मैथमेटिक्स करने की जो कला है, वो शक्ति वो खत्म हो जाती है ना। अगर आप दुकान पे जाओ, बोलो सब्जी ली 51 रुपये की और ये 22 रुपये की, कितना हुआ 51 + 22, अपने आप से नहीं बता पाए कितना हुआ, सिंपल चीज़ देखते हैं ना आप। और पहले लोग क्या है, बड़े 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 बड़ी गणना भी ऐसे ही मन के अंदर करते थे, बड़ी बड़ी गणना, बड़े बड़े। अभी आजकल आप बच्चों को बोलोगे 2 + 5 2 वेट मोबाइल 2 + 5 7। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम जो है ना, हमारी शक्तियाँ भी कम होती हैं, मेमोरी पावर। जब से ये मोबाइल नहीं था, जब डायलिंग करते थे, आप लोगों ने तो पता नहीं देखे भी होंगे कि नहीं देखे होंगे डायलिंग करने वाले, तो कम से कम नंबर लोगों को याद रहते थे, क्योंकि एक एक डायल करते थे 9 2 4। अभी क्या, केवल बटन दबाना है ना, तो नंबर भी याद नहीं रहते। तो मेमोरी पावर, अभी मेमोरी को वो डल होती जा रही है। एवरीथिंग इज लाइक दैट। जितना लाइफ में कंफर्ट्स आते हैं, है ना, लाइट है आसानी से, पानी, रनिंग वाटर है, पहले लोगों को कुएँ से पानी खींचना है ना, तो बॉडी बिल्डअप होती है। अभी बॉडी बिल्डअप होने की जरूरत ही वही नहीं है, अवसर ही नहीं है। बैठे फिर बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास आके उसको दवाई देते हैं, उसको पैसा देते हैं। सो लाइक दैट। सो द पॉइंट इज, एनीवे, द पॉइंट इज दैट दे वर ग्रेट फाइटर्स। देयर आर ऑल्सो ग्रेट हीरोइक पावरफुल फाइटर्स लाइक दृष्टकेतु. Drishtiketu was son of Drishtadumna, grandson of Drupad. He is also a great fighter. Chikitan, Kashiraj, Purujit, Kunti Bhoj, Shaibya, they are all very great fighters. Like ऐसे अलग अलग वो राजाओं का वर्णन कर रहे हैं. लेकिन for your information of best of Brahmana, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. तो मैं आपका ध्यान हमारी मिलिट्री में कौन कौन है उनका भी तरफ भी दिलाना चाहता हूँ, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए. So there are personalities like you. डिप्लोमेटिक सबसे पहले उसी का नाम बोल रहा है, आप कितने महान हैं. Then Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna and son of Somadatta called Bhurishava were always victorious in battle. Duryodhana mentions the exceptional heroes in the battle, all of whom are all very victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana. Ashwatthama is the son of Dronacharya. And Saumadati or Bhurishava is the son of king of Bahilikas. Karna is the half brother of Arjuna, as he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. And Kripacharya's twin sister married Dronacharya. तो पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया. हालांकि भीष्म वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द होल बैटल. मीन्स ऑफ कृष्णा इज नॉट कंपेरेबल, बट अदरवाइज भीष्म वॉज द ग्रेटेस्ट वॉरियर इन दैट बैटल.
लेकिन भीष्म का नाम बाद में बोला, पहले द्रोणाचार्य का नाम बोला, डिप्लोमेटिक। फिर सब बड़े बड़े हैं। कर्ण, कर्ण वॉज एक्चुअली सन ऑफ कुंती, क्योंकि कुंती महारानी को एक वर प्राप्त हुआ था, उन्होंने दुर्वासा मुनि की बहुत सेवा की थी जब वो प्रिंसेस थी, पृथा, राजा पृथा के यहाँ। तो उनको एक वर दिया था द्रोणाचार्य दुर्वासा ने कि आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो टू जस्ट टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टू टेस्ट दैट शी कॉल्ड फॉर सन गॉड। तो सन गॉड इमीडिएटली केम, शी वाज सरप्राइज्ड, व्हाट्स हैपेंड, शी केम। तो देन शी सॉर्ट सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं तो ये टेस्ट करने के लिए मंत्र पढ़ा कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। सो देन सन गॉड केम, बोले अभी आप, मैं आ तो गया हूँ बट माई कमिंग देन विल नॉट, शुड नॉट बी फ्रूटलेस, शुड नॉट बी, सो आई विल गिव यू अ सन। बट शी वॉज वरीड कि बिकॉज शी वॉज वर्जिन, शी वॉज नॉट मैरिड, बिफोर मैरिज हाउ कैन वन बी प्रेग्नेंट, इट इज़ वेरी abominable for one to be pregnant, be pregnant before marriage. This is Vedic custom. आजकल की तरह नहीं है कि शादी से पहले ही लोग सेक्स करते हैं. So it was considered very abominable. So then no one will marry. Actually Vedic culture में अगर किसी ने विवाह से पहले सेक्स कर दिया है, then no one will accept that women. So what should be done now? The sun god said, no problem. You will remain virgin. Your virginity will not be affected. Still you will get a son. So because they are demigods, they have power. So he impregnated not by normal sexual intercourse. He impregnated directly without intercourse, without seminal discharge. Directly the son went into the Atma went into the womb, and directly it came out of the Karna, ear of the Kunti Maharani. Therefore, the name of that child is Karna, born out of ear. This is all mystic power, not born out of vagina. Normally, the son is born out of vagina, but that son was born out of the ear of Kunti, so he was called Karna. ठीक है, सो इसलिए वो बच्चा, लेकिन अभी उसको कैसे सबको बताएगी कि ये मेरा पुत्र है, कैसे? सो शी पैक्ड द चाइल्ड इन ए बास्केट और नदी में उसको बहा दिया, एंड देन आगे उसको किसी और व्यक्ति ने उसको निकाला, एंड देन ही, दैट इज द हिस्ट्री बिहाइंड कर्ण. सो देयरफॉर इट इज सेड कर्ण वाज ब्रदर ऑफ अर्जुन, क्योंकि कुंती का ही वो पुत्र है. देयर आर मैनी अदर हीरोज दैट आर प्रिपेयर्ड टू ले देयर लाइव्स फॉर माई सेक. ऑल ऑफ देम आर वेल इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन्स एंड आर वेल एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री आर्ट्स. नेक्स्ट, Aparyaptam tadasmakam. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. So he is saying, don't worry, we are having unlimited strength, but Pandavas' strength is limited. So he is trying to encourage द्रोणाचार्य की पूरी शक्ति से लड़िए, आप तो घबराइए मत, हमारे पास बहुत सारे हैं, उनके पास तो कम है. भीष्मा है हमारे पास, एक एक से एक कर्ण है, एक से बढ़कर एक. Here an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being especially protected by most experienced general, grandfather Bhishma. Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. भीम जैसे बड़े बड़े महारथी भीष्म के सामने कुछ नहीं थे. Bhishma was such a great warrior. Immeasurable strength. परशुराम को भी भीष्म ने हरा दिया था. भीष्म was son of Shantanu through Ganga. Shantanu was the father of Bhishma. On the other side, he was father of Vichitravirya and Chitrangada. चित्रांगदा के पुत्र थे पांडु, धृतराष्ट्र. कैसे थे, क्या था? शांतनु राजा सत्यवती, पहले उनका गंगा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ भीष्म. फिर सत्यवती दूसरी उनकी पत्नी से उनको विवाह करने की इच्छा हुई शांतनु की. लेकिन सत्यवती के जो पिता हैं उन्होंने कंडीशन रखी
कि ये जो सत्यवती के पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे, भीष्म नहीं बनेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, भीष्म ने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनके पुत्रों को राजा बनाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे जो बच्चे अगर होंगे वो अगर राज्य के लिए फिर अधिकार मांगेंगे तो क्या होगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तो मैं विवाह ही नहीं करूँगा। Therefore his name became Bhishma, that प्रतिज्ञा उसने ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। Then शांतनु could marry सत्यवती, और फिर उससे उनको पुत्र प्राप्त हुए, चित्रांगदा एंड विचित्रवीर्य। चित्रांगदा डाइड, गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो मर गए। चित्रांगदा रह गए, विचित्रवीर्य रह गए। विचित्रवीर्य, वीर्य मतलब सेमन, विचित्र मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उनके साथ उनका प्रॉब्लम थी कि वो ही वॉज टू मच अटैच्ड टू हिज वाइफ, सो ही कुडंट गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड। तो विचित्र वीर्य के लिए, विवाह के लिए भीष्म 3 राजकुमारियों को लेके आए थे अपहरण करके, बिकॉज अमंग द क्षत्रियस दैट वाज द वन ऑफ द सिस्टम ऑफ मैरिज। भाई शक्ति से राजकुमारी स्वयंवर में उनको अपहरण करके उनका विवाह होता था, बिकॉज उनकी विवाह में सबसे इम्पोर्टेंट था कि कौन ताकतवर है, दैट वाज द क्राइटेरिया। सो टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर यूज्ड टू बी ऑलवेज सम फाइटिंग। तो अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 राजकुमारी को लेके आए थे, तीनों बहनें थी फॉर विचित्रवीर्य। लेकिन अंबिका शी वांटेड टू मैरी भीष्म, जिन्होंने उनको अब्डक्ट किया था, बिकॉज शी फाउंड दैट भीष्म इज सच अ ग्रेट वॉरियर। सो शी प्रपोज, आई वांट टू मैरी यू। भीष्म का नहीं, आई विल नॉट मैरी यू, आई एम ब्रिंगिंग यू फॉर माई ब्रदर दिस विचित्र वीर्य। तो अंबिका वेंट टू परशुराम। परशुराम वॉज द मिलिट्री गुरु ऑफ भीष्म, कि ये विवाह नहीं करता है, मैंने आई क्षत्रिय के लिए क्या है, इफ अ गर्ल कम टू मैरी देन क्षत्रिय शुड एक्सेप्ट। तो अंबा, yeah, what I said? No, Amba. So Amba proposed. So then Parshuram said, "Hare, you marry? Why don't you marry? You are a king." She is proposed. So Bhishma said, "No, I have given my word that I will not marry. How can I marry?" So then Parshuram said, "No, you should marry." Then there was a fight, and Parshuram को उन्होंने हरा दिया. Parshuram happily accepted that because his disciple is so chivalrous. Otherwise, Parshuram cannot be defeated, but he saw Bhishma is so powerful, so he was very pleased with that. That is the history. So Ambika and Ambalika, then they married Vichitravirya, but Vichitravirya died. He couldn't beget sons. So then Satyavati requested her another son, Vyasadeva. Vyasadeva was also son of Satyavati through Parashar Muni. So Parashar Muni के पुत्र व्यास, इस तरह से व्यासदेव was the brother of भीष्म and विचित्रवीर्य. So उनके थ्रू फिर ये अंबिका अंबालिका के गर्भ से पांडु और धृतराष्ट्र हुए थे. और उनकी एक दासी थी, तो जिनकी इनकी अंबिका अंबालिका की उनके थ्रू व्यासदेव ने विदुर को जन्म दिया. थोड़ा सा आपको ये सब याद रखना थोड़ा समय लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है. तो इस तरह से तीनों भाई थे. सो दैट इज द हिस्ट्री. एनीवे, लेट्स फिनिश नाउ. हरे कृष्ण. प्रभुपाद की जय. बेल